Hi everyone, this is Sunaina Sugla, your hostess for today's episode of Spiritual Awareness with Tina Kapoor. As you all know, Tina is a mindfulness coach and a relationship counselor who has conducted several mind body soul sessions at different schools and colleges to help people get rid of stress and anxiety in their lives. It's her soul path. And today we are all going to give her questions to answer. So my first question to you, Tina, is from Akanksha from Dehradun. Hi, Tina. Thank you, Sunana. Namaste to all my audiences and viewers. Yes, Sunana. So how to know if should someone commit to someone if he's dating or she's dating? How do you know that you should commit to that person? Okay. So the question is, how can I know whether I should commit or not to somebody I am dating? Is that correct? Yes, correct. Okay. So, well, I am often asked this question, and I have kind of formed a phrase regarding this, that always see how the other person makes you feel, not how you feel for that person. Got it? So that somebody may be, some person may be very accomplished. He or she can be very charming. But how does he or she make you feel versus how you feel for them? So you always have to pay attention to how does that person make you feel? Does he make you feel worthy? Does he make you feel noticed? Does he make you feel important? On the contrary, does he make you feel unwanted, unworthy, constantly questioning your place in that somebody's life? किस तरह से वो आपको महसूस कराते हैं, इंपॉर्टेंट या अनवर्दी, निग्लेक्टेड या वर्दी? ये इसका जवाब आपके अंदर खुद ही छुपा है. यू हैव टू फाइंड दिस आंसर. यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, not how you feel for somebody, but how does that person make you feel? And I hope you will get the answer from your own mind. Think about it. Yeah, I think you're very right. If you have to feel how that person is making you feel. Correct. And there's a question from Renu from Punjab. She asks, why does my work feel like a pressure? Okay. तो इसका जवाब मैं हिंदी में समझाना चाहूंगी. मैंने रिसेंटली किसी की बहुत सुनहरी बात सुनी थी जो मैं यहाँ पे आई थिंक इस आंसर में पूरी तरह से फिट होगी. Why does my work feel like a pressure? I think. Okay. Yeah. तो अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जो काम वो कर रहे हैं वो काफी बर्डनसम है. आप ये देखिए, एक चीज होती है इच्छा. इच्छा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजायर. और एक चीज हाँ, और एक चीज होती है क्षमता. क्षमता यानी कि हमारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी. या सो जिस काम को करने की आपके अंदर इच्छा हो लेकिन क्षमता ना हो, वो प्रेशर लगेगा. और जिस काम को करने की क्षमता तो है लेकिन इच्छा ही नहीं है, वो भी प्रेशर लगेगा. तो फिर यदि संभव हो तो कुछ ऐसा कार्य ढूंढ लीजिए जिसमें इच्छा और क्षमता दोनों सम्मिलित हो. और अगर नहीं पॉसिबल है काम को चेंज करना, तो फिर जिस काम की इच्छा है उसकी क्षमता पैदा कर लीजिए, और जिस काम की क्षमता है उसकी इच्छा पैदा कर लीजिए. तो फिर वर्क जो है वो प्रेशर नहीं प्लेजर हो जाएगा. आई होप इसको जवाब मिल गया होगा. नहीं, बहुत ही सरलता से आपने समझाया. दैट्स रियली नाइस. कि वही बात है, वर्क बिकम्स प्लेजर, देन इट डजंट स्टेज अ स्ट्रेस, डजंट स्टे अ प्रेशर. एग्जैक्टली. बहुत खूब. अब नितिन गुजरात से बोलते हैं, व्हाट इज एन आइडियल कपल और अ हस्बैंड और अ वाइफ? हु इज इट? लाइक हाउ डू यू से? Okay, what is a ideal husband and wife? Ideal couple, yeah, husband or wife. What is the ideal couple? How do you say that this is a ideal husband or ideal wife? देखिए, एज अ कपल आई विल से कि दोनों ही एक गाड़ी के दो पहियों के समान है ना? तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, वो तो आएंगी ही. लेकिन कितना जल्दी वो जो गाड़ी के दो पहिए हैं, वो अगर गाड़ी ऑफ ट्रैक हुई तो कितना जल्दी वो उसको वापस ऑन ट्रैक ला पाते हैं, यही इस बात का मापदंड है कि वो कितने आइडियल है.
तो मेरे हिसाब से आइडियल हस्बैंड वाइफ वो नहीं है जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है या उनकी लाइफ रोमांस से भरी हुई है। आइडियल हस्बैंड एंड वाइफ वो हैं जो प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद अपने इश्यूज को रिजॉल्व बहुत क्विकली करना जानते हैं और उस ऑफ ट्रैक हुई हुई गाड़ी को जल्दी से वापस ऑन ट्रैक लाके दोनों ही इम्पोर्टेंट पहिए उस गाड़ी को वापस चलाने की क्षमता रखते हैं। वही आइडियल हस्बैंड और वाइफ है। रियली नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब जितनी जल्दी वापस बैलेंस पे आ गए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट टू हैव एन आइडियलिस्ट। यस, ग्रेट, thank you, Tina. So there's another question now from Anirudh from Chennai, and he's saying how to handle a dominating partner. How do we handle a dominating partner? देखिए, जरूरी नहीं कि कोई डोमिनेटिंग हो। ऐसा भी लग सकता है कि हम बहुत ज्यादा टिमिड हो, इसलिए हमें लग रहा है कि सामने वाला हमें डोमिनेट कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा सेल्फ लव की प्लेस से हम एड्रेस करेंगे कि जैसे हैव यू बीन एबल टू कैरी सर्टेन लेवल ऑफ वर्थ फॉर योर सेल्फ। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि आपने इफेक्टिवली अपनी नीड्स सामने वाले को कम्युनिकेट की हैं। यदि आपका अपना कॉन्फिडेंस कम है, अगर आपका, मैं कहती हूँ इमोशनल क्वोशंट कहते हैं उसको। रिसेंटली मैंने एक सेशन कंडक्ट किया जिसमें मैंने बच्चों को 4 क्वेश्चंस के बारे में बताया। क्वेश्चंस यानी कि 4 लाइफ स्किल्स, और उन चारों में से एक में मिसिंग हो तो इंसान को अपने अंदर बहुत अधूरापन लगता है। सो आईक्यू हो गया आपका इंटेलिजेंस क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, एडवर्सिटी क्वोशंट और सोशल क्वोशंट। इन क्वेश्चंस में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट क्या होता है एक व्यक्ति का, कि मैं अपनी नीड्स को समझ भी रहा हूँ और इफेक्टिवली सामने वाले को कम्युनिकेट करने की क्षमता भी है मेरे अंदर। तो क्या आपका इमोशनल क्वोशंट इतना डेवलप है कि आपने अपनी नीड्स को सीधी सादी सरल भाषा में सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत किया है और उसके बावजूद उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आया? यदि किया है तो फिर वो तो सिचुएशन सेपरेट हो जाती है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर डोमिनेटिंग है। आप ये देखिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, स्ट्रेंथ कम है, अपनी बात करने की क्षमता कम है, तो आपको आपका पार्टनर नहीं, एवरीबडी एल्स विल बी डोमिनेटिंग। आपके ऊपर सबका राज चलेगा बिकॉज आप चलने देते हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और फिर रिलेशनशिप्स में फर्क देखिएगा। तो जैसे कि हमने पिछले कई एपिसोड्स में बोला कि इट ऑल बिगिंस विद मी। सामने वाला डोमिनेटिंग नहीं है, मैं शायद कमजोर हूं इसलिए मुझे डोमिनेट किया जा रहा है, चाहे मेरा पार्टनर करे चाहे बाकी के बाहर के लोग करें। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए और फिर देखिए रिलेशनशिप्स कैसे चेंज होते हैं, क्योंकि जितना मैंने सोल की ग्रोथ मेरी होगी उतने ही मेरे रिलेशनशिप्स में पॉजिटिव चेंज भी आएगा। सो आई थिंक इनको इनका आंसर मिल गया होगा। बहुत ही बढ़िया आपने। आई थिंक ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, स्पेशली आज के बच्चों में, विमेन में। हमें खुद ही नहीं पता होता कि वी आर लिटिल वीक और वी डो नॉट नो व्हाट वी वांट, और जिसको पता है वो हमें डोमिनेटिंग लगते हैं। करेक्ट। थैंक यू so much, Tina. I think it's a wonderful session. We'll come back with another sequence. Everybody, thank you so much once again. थैंक यू सुनैना, थैंक यू व्यूअर्स। Thank you.